کوہ سلیمان میں 4 ڈیمز بنائے جائیں گے۔ کوہ سلیمان میں واٹر مینجمنٹ ٹیم کا دورہ۔ واٹر مینجمنٹ ٹیم نے کوہ سلیمان میں ڈیمز کے لیے جگہ کا معائنہ کیا۔ ڈیموں اور ٹیموں نے سنگڑ پر ڈیم بنانے کے لیے فیزیبلٹی بنائی ہے۔ ڈیم کے ساتھ واٹر سپلائی کا میگا پروجیکٹ بھی بنے گا۔ ڈیم بننے سے کوہ سلیمان میں ضائع ہونے والا پانی بچایا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹیموں نے سنگڑ پر ڈیم بنانے کے لیے فیزیبلٹی بنائی ہے۔ ڈیم کے ساتھ واٹر سپلائی کا میگا پروجیکٹ بھی بنے گا۔ ڈیم بننے سے کوہ سلیمان میں ضائع ہونے والا پانی بچایا جا سکے گا۔ تو آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کوہ سلیمان میں بنیں گے ڈیمز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کوہ سلیمان میں 4 ڈیمز بنائے جائیں گے۔ کوہ سلیمان میں واٹر مینجمنٹ ٹیم کا دورہ۔ واٹر مینجمنٹ ٹیم نے کوہ سلیمان میں ڈیمز کے لیے جگہ کا معائنہ کیا۔ ٹیموں نے سگڑ پر ڈیم بنانے کے لیے فیزیبلٹی بنائی ہے۔ ڈیم کے ساتھ واٹر سپلائی کا میگا پروجیکٹ بھی بنے گا۔ ڈیم بننے سے کوہ سلیمان میں ضائع ہونے والے پانی بچایا جا سکے گا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں 4 ڈیمز بنائے جائیں گے کوہ سلیمان میں۔ کوہ سلیمان میں واٹر مینجمنٹ ٹیم نے دورہ کیا ہے۔ واٹر مینجمنٹ ٹیم نے کوہ سلیمان میں ڈیمز کے لیے جگہ کا معائنہ کیا ہے۔ ٹیموں نے سگڑ پر ڈیم بنانے کے لیے فیزیبلٹی بھی بنا لی ہے۔ ڈیم کے ساتھ واٹر سپلائی کا میگا پروجیکٹ بھی تعمیر کیا جائے گا۔ ڈیم بننے سے کوہ سلیمان میں ضائع ہونے والا پانی بھی بچایا جا سکے گا۔ کوہ سلیمان میں بنیں گے ڈیمز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کوہ سلیمان میں 4 ڈیمز بنائے جائیں گے۔ کوہ سلیمان میں واٹر مینجمنٹ ٹیم کا دورہ۔ واٹر مینجمنٹ ٹیم نے کوہ سلیمان میں ڈیمز کے لیے جگہ کا معائنہ کیا ہے۔ ٹیموں نے سگڑ پر ڈیم بنانے کے لیے فیزیبلٹی بھی بنا لی ہے۔ ڈیم کے ساتھ واٹر سپلائی کا میگا پروجیکٹ بھی بنے گا۔ ڈیم بننے سے کوہ سلیمان میں ضائع ہونے والا پانی بھی بچایا جا سکے گا۔ ڈیم بننے سے ذخیرہ پانی کاشتکاری کے لیے کام آئے گا۔ ڈیم سے کوہ سلیمان کے لیے بجلی بھی پیدا کی جا سکے گی۔ ڈیم کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے روہی کی خوشخبری سنائی ہے۔ روہی کو اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی بالکل، کوہ سلیمان میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی کاوش کے بعد یہ معاملہ اب پائے تکمیل تک پہنچتا دکھائی دیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ 4 ڈیمز کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد واٹر مینجمنٹ کی ٹیم نے آج کوہ سلیمان میں دورہ کیا ہے، اور اس دورے کے دوران ٹیم جو ہے وہ فیزیبلٹی رپورٹ بنائے گی، اور ٹیم نے مختلف جگہوں کا معائنہ بھی کیا جہاں پر ڈیمز بنائے جائیں گے۔ ٹیمز کے ممبرز نے نہ صرف ڈیمز کے حوالے سے بلکہ علاقے میں جو پانی کی سٹوریج ہے اس کے حوالے سے بھی مقامات کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد واٹر مینجمنٹ ٹیم نے یہ بھی جائزہ لیا کہ کس طریقے سے ڈیمز کے ساتھ ساتھ جو مطلوبہ ٹارگٹس ہیں، خاص طور پر وسیع رقبے پہ جو کاشت کی جانے والی فصل تھی اس کو کس طریقے سے سیراب کیا جانا ہے، اس ساری تمام چیزوں کی تفصیلات اکٹھی کرنے کے بعد ٹیم جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جائے گی، جس میں فورٹ منرو، بھارتی، مبارکی ٹاپ اور دیگر علاقے ہیں۔ سانگڑ جو کہ کوہ سلیمان میں 4 ڈیمز بنائے جائیں گے۔ بیورو چیف محسن الملک آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کوہ سلیمان میں کاشتکاری کو ملے گا فروغ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کاشتکاری کے لیے خصوصی اقدامات۔ کوہ سلیمان رواں سیزن میں گندم اور زیتون کی کاشت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کوہ سلیمان کا بڑا رقبہ گندم کی پیداوار ضرورت پوری کرے گا۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں محسن الملک سے۔ دوبارہ سے ہمیں رابطہ کیا ہے محسن الملک سے۔ محسن بتائے گا اس حوالے سے۔ اس وقت ترقی کی راہ پر گامزن ہیں سردار عثمان بزدار۔ جب سے آئے ہیں سی ایم بنے ہیں تو اس کے بعد کنیکٹ کر دیا ہے آپس میں علاقوں کو، اور جب سے یہ ترقیاتی سفر شروع ہوا ہے تب سے جدت بھی آتی جا رہی ہے۔ چاہے کوئی بھی چیز دیکھ لیں، میرے پیچھے جو اس وقت کوہ سلیمان بواٹا کا یہ علاقہ ہے جہاں پر اس وقت کاشت کی گئی زمین ہے اور ارد گرد پہاڑ ہیں، پانی بھی ہے جو کہ سٹوریج کیا ہوا ہے پیچھے، لیکن اس کے نتائج بہت اچھے آ رہے ہیں۔ اس وقت گندم ہے یہاں پر کاشت ہو رہی، یہاں کے علاقے کی سب سے اہم جو فصل ہے وہ زیتون بھی ہے، اور زیتون کے بارے میں ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ زیتون وہ فصل ہے یہاں کی جو کہ اسپین یا پھر دیگر علاقوں سے بھی زیادہ نتائج دے رہی ہے، جہاں پر 80% پھل جو ہے زیتون کا آ رہا ہے اسپین یا ادھر 190% اس کے نتائج آ رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پر زیتون ایک اچھی فصل ہے۔ تو فصل کے بارے میں ہمارے ساتھ کسان ہیں یہاں پہ، تو آپ کی یہ فصل ہے یہاں پر محنت بھی زیادہ ہوتی ہوگی، لیکن کیا کم سمجھتے ہیں کوہ سلیمان کی زمین کتنی اہم ہے؟ جی کیسے بڑا اچھا ہے، یہاں پہ کپاس بھی ہو جائے گا، مرچ بھی سبز مرچ بھی ہو جائے گا، اور اس میں زیتون بھی ہے، ہر سبزی ہو جائے گا نا اس میں، پانی بھی ہے ماشاءاللہ، اور اچھا زمینداری ہے۔ تو زیادہ ترقی کر رہا ہے آپ کا علاقہ، پہلے سے بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے؟ ہاں جی، ہاں کر رہا ہے، تیزی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
वजह आप देख रहे हैं खुद, अच्छा हो रहा है ना। वज़ीर आला भी आपके इलाके? हाँ जी, हमारे इलाके का जी। काम कर रहे हैं वो? अब कर रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत कर रहा है। ठीक है जी जी। तो उसकी वजह से भी नताइज आ रहे हैं? जी जी हाँ। खुश हैं आप लोग? हाँ जी खुश है। ठीक है जी। वज़ीर आला पंजाब या फिर उसके बाद हुकूमत की जानिब से जो इनिशिएटिव लिए गए कोही हैं। सुलेमान में काश्तकारी से खुशहाली का सफर शुरू हो गया है। ब्यूरो चीफ मोहसिन और मुल्क आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे बहावलपुर का, जहां गंदम की बिजाई के लिए जमीन की तैयारी का अमल शुरू कर दिया गया है। महंगाई के मारे किसान गंदम पर आने वाले अखराजात से परेशान हैं। जमीन का ठेका 50 से 70 हजार एकड़ सालाना है। काश्तकारों का कहना है कि गंदम का बीज 3500 रुपए मन मिल रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अतल आशारी से। जी अतल बताएगा किसानों को परेशानी का सामना है। जी बिल्कुल ऐसे कि भावलपुर की बात करें तो भावलपुर में कपास की चुनाही आखिरी मराहिल में है और जहां मुकम्मल हो गई है वहां अब जो ज़मीन है वो तैयार की जा रही है गंदम की बिजाई के लिए। गंदम की बिजाई पर कितना खर्चा आता है, क्या क्या मसाइल होते हैं, इसी के ऊपर जरा बात करते हैं काश्तकारों से। चाचा से दसाओ चौका खर्चा थी वेंदे, कणक दे बिज ते बिजाई ते सारे पानी वाणी ला ते कोई दवाइयां ला के इन्हां दा ठेका बाना ला के चौका थी वेंदे, क्या आखसो? ठेका सी 60 ਤੋਂ 65,000 रुपया ठेका है। स्कूल की सरकारी जमीन है ते 60-65 60 ये रखो ते 70-75 खर्चा आ वेंदे। 1,25,000 30,000 रुपए बन वेंदी है ते औसत जी आई है 7 मन 6 मन एक कपा है किला ला रहा है। खर्चा वो लाख तो भी टप गया। स्प्रे महंगे मिलन। कणकां दे हुण बीज जाने किसी को 3,000 कहंदा, कोई 3500 कहंदा है। बिज जो इतना महंगा ले भी है तो सानू बचत की आनी है। मजबूरी है, ठेका है हुण लई खड़े जमीन छोड़नी भी तो नहीं। ये फसल चाह के गया लावार से वेखी जाएगी हुण 5-5 8-8 लाख के करजा ही हुए पे ने। जिम्मेदार जिहड़े मुरब्बा लई पे ने। असी मुजेरे हाँ और साडा भी खाता वो पूरा नहीं कर सकते। खाता भी पूरा नहीं थींदा भाई। दसेसो बिजली दे खर्चे, ट्यूबवेल दे और दूजा बाकी चीज़ां से छोटी छोटी चीज़ें जड़ी है ना अक्सर देखिनो के बजाई गाल शाल मार के सारी अपनी चीज़ें कहनी थी। सिर्फ ये कि खर्चा इतना आवेंदे कि हुण अपनी रोटी खाने जो के पैसे भी नहीं थींदे कि शाम को जो घर वेंदे से टेंशन थींदी है। मजबूरी है, क्या करो हुण कि इतनी असा 1300 नाल कणक रीती है, 1300 नाल कणक रीती है ते हुण साकू 3500 नाल बेच देंदे कि सारी जिवें कणक ही 1300 नाल की देंदे बेच भी 1300 नाल लेना चाहिए ना उन्होंने को। ये सारे मसले हल अगर थी सकें तो कर दो, नहीं तो वाल मजबूरी है सारी असा वाल। बिल्कुल ऐसे जी। बिजाई से गंदम की बिजाई के खर्चे के हवाले से काश्तकार परेशान है। अतल आशारी बहुत शुक्रिया आपका। जिला मुल्तान में रबी सीजन में गंदम की बिजाई का हदफ 4,20,000 एकड़ है। काश्तकार गंदम क्यों काश्त करेगा? काश्तकार मोहम्मद असगर का कहना है कि लेबर और जमीन के ठेके के बगैर गंदम फी एकड़ के अखराजात 56,000 और आमदन 53,000 है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक से। जी रजा बताएगा। रबी सीजन का आगाज होने जा रहा है और सबसे अहम फसल है गंदम। पूरे मुल्क में जो गंदम के जखायर हैं वो पहले ही कम हो रहे हैं और अब उसको पूरा करने के लिए गंदम आटे का बुरान हल करने के लिए बाहर से जो है वो गंदम मंगवाई जा रही है। काश्तकार गंदम क्यों काश्त करे कि उस पे फी एकड़ अखराजात और फी एकड़ आमदन का क्या तवाजुन है और क्या मिलता है किसान को इस रबी सीजन की जो 5 माह की 6 माह की जो फसल है उसको काश्त करने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं काश्तकार हैं। तैयार खड़े हैं फसल कटन वास्ते। ये फसल बिजाई की थी, फसल ही कुछ है नहीं मिली जी। मैं 10-11 स्प्रे करा चुका जी लेकिन पैदावार कुछ है नहीं आई। 3-4 मार 5 मार उत्ते पैदावार कोई नहीं वेंदी भी। असम बड़े ही खसारे वेंदे पे। सारे नौकरां दा खर्चा भी नहीं निकलता पिया। हुण इको कट के रूटावेटर फेर के जमीन की तैयारी करके खादा लैसूं बीज लैसूं फिर कणक काश्त करेसूं। 6 महीने की फसल है वो कणक काश्त हो सी साडे उहदे विच अगर गवर्नमेंट साकू 2,000 रुपया प्लस देवे तो साडा वारा आंदा है आकाश करन दा। वरना कणक काश्त करन वास्ते साडा दिल नहीं करेंदा क्योंकि 4,000 तो लैके 4200 तक साकू DAP मिलती पई है। 26 अपने 2,000 के लगभग साकू यूरिया खाद मिलती पई है। पोटाश बड़ी महंगी खाद है वो असां नहीं से पा सकते। सारे नौकर जिहड़े वो सारे 2,000 अपने 18,000 तो 20,000 रुपये तनख्वाह वो मंगते हैं उन्होंने वास्ते नहीं। सारी जो सिर्फ मजबूरी है भी असा काम कोई कर नहीं सकते। कुछ ना कुछ चलो सारे अपने खावन के दाने आवने, सारे बाल बच्चे के दाने आवने, सारे नौकरों के दाने आवने, इन वैसा गुजारे। जी बिल्कुल जो काश्तकार हैं वो क्यों काश्त जी रजा मलिक बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात बता रहे थे।
मुल्तान में सब्जी मंडी में सफाई की सूरत हाल नाक़िस। सफाई ना होने के बायस मंडी में बदबू और ताफुन फैलने लगा है। इंतजामिया सब्जी मंडी में सफाई की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं देती, शहरियों का ऐसा कहना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम बताएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी में, सब्जी मंडी में, और मुल्तान की सब्जी मंडी जो है, यहाँ पर सफाई की सूरत हाल है जो वो बिल्कुल ही नाक़िस है। आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, कूड़े का गंद जो है वो बच पड़ा हुआ है। यहाँ पर पूरा कूड़ा यहाँ पर जमा किया गया है। आधी से ज्यादा सड़क पर कूड़ा जो ये आया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। आप देख सकते हैं। आप बताएं, आपकी दुकान के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, ये क्या सूरत हाल है? सफाई नहीं होती? नहीं, ये एक दिन में उठता है, लेकिन कम उठता है। 3-3 दिन पड़ा रहता है ये। नहीं, पूरा नहीं उठता। जी बिल्कुल, कूड़ा जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से इधर की सफाई जो है वो नहीं होती। आप भी इधर ही होते हैं सब्जी मंडी में? ये कूड़े की क्या सूरत है? भाईजान, किसी काम की मंडी नहीं है, सारा गंद ही गंद है। हाँ, सारा चौक रोक रहता है, आने के अंदर की जाने की कहीं की जगह नहीं है। समझ आ गई? बंदा टपने की जगह नहीं। इतनी सुबह आप इधर 5 बजे 6 बजे 4 बजे आके तो देखो, यहाँ बंदा लगने की जगह नहीं, इधर खोता रेडी नहीं लगने की जगह नहीं है। इतनी बड़ी मंडी तो बना दी, सहूलत एक आने की नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी मंडी तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर सहूलतें जो हैं वो फराहम नहीं की गई। जिस तरह जी, सफाई की अबतर सूरत हाल है। इब्राहिम खान, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में शहर के वस्त से गुजरने वाली थर्मल रोड टूट फूट का शिकार है। थर्मल रोड पर मिट्टी, गर्दो गुबार और कचरे के अंबार लग गए हैं। राहगीरों को सख्त दुश्वारी का सामना है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर बताइएगा। शहर के वस्त से गुजरने वाली जो मुजफ्फरगढ़ थर्मल रोड है, इस पर हम इस वक्त मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को यहाँ खासी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोड की हालत जो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो बड़ी तादाद में यहाँ पर रोड पर जो है वो मट्टी मौजूद है, क्योंकि पाबंदी के बावजूद यहाँ से रेत की ट्रालियाँ जो वो गुजर कर जाती हैं, और सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ने की वजह से यहाँ से जो लोग हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें बड़ी परेशानी का जो वो सामना करना पड़ रहा है। इसी रोड पर बगैर इजाज़त के यहाँ के इलाका मकीनों की जानिब से कचरा भी जो वो जलाया जा रहा है। कोट अद्दू भी यही रोड जाते हैं, और मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर में और रेलवे स्टेशन के करीब दाखिल होने में इसी रोड का जो वो सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर के जो गुजरने वाले मुसाफिर हैं और इलाका मकीन है वो भी खासे यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं। इलाका मकीनों, मुसाफिरों और जो दीगर यहाँ से गुजरने वाले रोजाना की बुनियाद पर शहरी उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया कि जिला इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है। आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे मियां चन्नू का, जहां टोल प्लाजा से कच्चा खौतक नेशनल हाईवे रोड खस्ता हाली का शिकार है। नेशनल हाईवे रोड पर गड्ढे पड़ने से हादसात मामूल बन गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा रूही फखर जमान से। जी फखर बताइएगा। मौजूद हूँ मियां चन्नू के नेशनल हाईवे रोड पर, जो कि इंतहाई मसरूफ तरीन शहरा है, जहाँ से कराची और लाहौर के लिए 24 घंटे ट्रैफिक जो है वो रमादमा रहती है। लेकिन रोड की खस्ता हाली के बायस आए रोज गाड़ियों का खराब होना और एक्सीडेंट होना मामूल बन चुका है। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ ट्रक ड्राइवर मौजूद है। सर बताइएगा, क्या मामला कहेंगे इस रोड के हवाले से? गाड़ी को क्या हुआ है आपकी? सर गाड़ी मेरी ख़राब हो गई है, आए दिन पंचर होती है, कभी कोई चीज़ टूट जाती है। इस रोड की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। जहाँ हमें 3 घंटे का सफ़र है, हमें 6 घंटे लगते हैं, तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। इतने हमारी आमदनी नहीं है जितने हमारे गाड़ियों में खर्चे पूरे हो जाते हैं, तो हम कैसे चलाएं अपना सिस्टम? ना हम कुछ कर सकते हैं, ना अपने घर वालों का कुछ कर सकते हैं। इन गाड़ियों पर लगा रहे हैं, और रोड की वजह से हमारे इतने खर्चात बढ़े हुए हैं। तो हमारी आला कौम से अपील है कि इस रोड की दोबारा तमीरात करवाई जाए और हमें बेहतर सहूलत फराहम की जाए। जी बिल्कुल, आला हुकाम से अपील है कि रोड को दोबारा तमीर करवाया जाए, ताकि जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासर न हो सके। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सड़क की अबतर सूरत हाल है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। फखर जमान, बहुत शुक्रिया आपका। सरगोदा में जिला इंतजामिया की गफलत, मेन कचहरी रोड पर खुले मैन हॉल किसी बड़े हादसे का पेश खैमा। कचहरी पुल के नीचे मैन हॉल टूट फूट का शिकार हैं। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह बताएगा। इस वक्त मैं कचहरी रोड मेन जो पुल है उसके नीचे मौजूद हूँ, और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये मेन हॉल है जिनके ढकने भी गायब हैं और टूट फूट का शिकार है, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। और इस हवाले से 12वां दफ़ा इंतजामिया को मुतलका इंतजामिया को जो है आगाह किया गया है यहाँ के शहरियों की जानिब से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और यहाँ पर आए रोज ट्रैफिक भी जाम रह रही है, और शहरी जो है वो ट्रैफिक हादसात का शिकार होते भी दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से मकामी यहाँ के मौजूदा से बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर जो मेन हॉल है वो टूट फूट का शिकार है?
ہم کہتے ہیں جی مین روڈ ہے، ادھر کبھی ٹریفک ڈگتی ہے، کبھی زخمی ہو رہے ہیں، کبھی گاڑی ڈگ جاتی ہے، بیک گٹر مارتے ہیں، ادھر گٹر کھلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر کوئی نہ کوئی گاڑی ڈگی ہوتی ہے، عوام بہت پریشان ہے، مین روڈ ہے جی۔ کیا مطالبہ کریں گے انتظامیہ سے؟ مطالبہ یہ کہ اس کا حل کریں جی۔ آپ بتائیے گا، یہ دیکھیں کہ ٹریفک جو ہے یہاں پر متاثر ہو رہی ہے اور حادثات بھی ہو رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا شہر سرگودا جو کہ پاکستان کے میجر سٹیز میں آتا ہے اور ان کے مین شاہراہ کا پوائنٹ اس طرح ہے، یہ کیا حال ہے، یہ کیا پاکستان ہے؟ کیوں انتظامیہ سے یہی ہے کہ کائنڈلی جیب میں کام ڈالیں اور اس جگہ یہ ہمارے ملک میں پیسہ لگائیں، کیونکہ جانا تو ایک دن قبر میں ہی ہے جو صرف 2 گز کی ہے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے سنا کہ شہری موجود تھے، ان کا مین ہال ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بیورو چیف فصیح اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان کا جہاں شاہ شمس پارک میں پارکنگ کے مسائل حل نہ ہو سکے، تفریح کے لیے آنے والے شہری پارکنگ مسائل سے دوچار ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں علی ریاض سے، علی بتائے گا۔ موجود ہوں ملتان کے قدیمی اور سب سے اہم شاہ شمس پارک میں، اور اس پارک کی یہ صورتحال ہے کہ 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس پارک میں پارکنگ کے جو انتظامات ہیں وہ نہیں ہیں، پارکنگ کا ٹھیکہ نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے جو صبح کے وقت اور شام کے وقت موٹر سائیکلوں پر اور گاڑیوں پر جو افراد آتے ہیں ان کو گاڑیاں کھڑی کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پارکنگ جو ہے اس کے کوئی انتظامات یہاں پر پی ایچ کی جانب سے نہیں کیے گئے۔ مجھے تفصیلات جانتے ہیں، شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ عرصہ دراز سے ادھر پارکنگ کا سہولت نہیں ہے، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انتظامیہ کو التماس ہے کہ وہ اس کا بندوبست کرے۔ جی، انتظامیہ سے التماس ہے، اس کا بندوبست ہے۔ میرا کیمرہ کارڈ اگر آپ کو دکھا چاہیے کہ یہاں پر جو تمام تر پارکنگ ہے جو جگہ ہے یہ وہ ہے، لیکن 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، یہاں پر پارکنگ کے کوئی انتظامات نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو آنے والے شہری ہیں ان کو اپنی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں اپنے طور پر یہاں وہاں پارک کے گرد کھڑی کرنی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک رسک رہتا ہے کہ ان کی گاڑیاں چوری نہ ہو جائے۔ تاہم پی ایچ اے کی جانب سے 1.5 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس پارک کی جو پارکنگ ہے اس کے لیے جو ٹھیکہ ہے وہ نہیں ہو پایا ہے۔ تاہم بتایا یہ جا رہا ہے پی ایچ اے ملتان میں کچھ انتظامیہ میں متاثر ہونے کی وجہ سے تمام تر جو پارکنگ ہے وہ نہیں ہو پائی ہے، لیکن پارک جو ایک قدیمی پارکنگ کے مسائل حل نہیں ہو سکے۔ علی ریاض، بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام کے تحت اندراج کروانے والی مستحق خواتین کا رش۔ بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں نادرا کے ملازمین کی جانب سے ڈیٹا انٹری کا عمل جاری۔ اب تک 10,000 سے زائد خواتین کی ڈیٹا انٹری کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ احساس پروگرام کے تحت اندراج کے لیے آنے والی خواتین عدم سہولیات پر شکوہ کناں ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں محمد امین سے۔ امین بتائے گا، سہولیات کا فقدان دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جی بالکل، بہاولپور میں مستحق اور غریب خاندانوں کے لیے جو ہے احساس پروگرام کے تحت اندراج جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور خواتین کی بڑی تعداد اس وقت جو ہے سٹی سرکل کی یہاں پر موجود ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر خواتین موجود ہیں، لیکن یہاں پر جو انتظامات ہیں وہ ناکافی دکھائی دے رہے ہیں۔ سکلین صاحب کو دکھا سکے تو یہ دائیں طرف جو ہے خواتین بیٹھی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں خواتین مختلف علاقوں سے آئی ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ یہاں پر جو احساس پروگرام کے تحت ان کا اندراج ہو جائے، اور اندراج کے بعد جو ہے ویریفیکیشن کا عمل شروع ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ان کو حتمی کارڈ دیا جائے گا، جس کے تحت 2,000 روپے جو ہے ایک خاندان کو ملیں گے۔ خواتین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سو کیا صورتحال ہے انتظامات دی؟ کوئی انتظام کہ نہیں، پانی نہیں ملتا تھا، ہر جمعے دے نادن پھر دے وال ویندے سے، پرے چو آندے سے، بے علاقے چو 200 روپیہ کرایہ بھر دے آندے سے، کوئی چیز بھی نہیں ملتی، والا دن ونجو بے جمعے آ ونجا ہے، فلانے بار آ ونجا ہے، بس یہ کچھ تھیندا پے۔ کیا صورتحال ہے تھم؟ کیا صورتحال ہے جو تھوڑا دن تجا ہفتہ آندے سے خود گال نہیں سن دے آتے نا، اتھا بابا اتھا بابا لینا لگو جو لینا لگ ساڑھے اکتے تھے گھر والے وینے سے بے کیا کروں، 300 200 کرایہ عرض کے کار آئے تھے، غریب بندے گھر دا کام کار چھوڑ آئے تھے تے آ گئے تھے۔ بالکل گھر کا کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں، اور احساس پروگرام میں اندراج کے عمل کے دوران سہولیات کا فقدان ہے۔ محمد امین، بہت شکریہ آپ کا۔ لیا میں مطالبات کے حق میں درجہ چہارم ملازمین کا ڈی سی آفس کے باہر احتجاج۔ مظاہرین کی مطالبات کے حق اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ملازمین کے بچوں کو درجہ چہارم کی سیٹوں پر 20% کوٹا دیا جائے، مظاہرین کا ایسا کہنا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں زاہد سرفراز سے۔ زاہد بتائے گا مظاہرین کا اور کیا کہنا ہے؟ درجہ چہارم کی تنظیم ایپکفا کے زیر اہتمام آج جو ہے ڈی سی ہاؤس ڈی سی آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ان مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کو جو درجہ چہارم جو محکمہ ایجوکیشن کے اندر سیٹیں آئی ہیں اس کے اندر ملازمین کا کوٹا 20% کوٹا نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو دھرنا ہے جو احتجاج ہے چوتھے روز کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ جو مظاہرین جو ہے انتظامیہ کے خلاف حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو 20% جو بچوں کوٹا ہے وہ جابز کے اندر فراہم کیا جائے۔ ضلعی صدر ایپکفا موجود ان سے بات کرتے ہیں۔ سر فرمائیے گا آج آپ کا احتجاج جاری
हवाले से क्या मुतालबात है आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं रोही न्यूज़ का शुक्रिया अदा करे कि साडे एहतजाज को कवरेज देने पैन। तो साडा अज का जो मुतालबा है 20% कोटा है, साडे नाल ज्यादती की वेंदी पई है। तो असां 3 दी जो साडा एहतजाज सीओ एजुकेशन दफ्तर दे विच भी थींदा रह गया। उल्टा साकू इंतकामी कार्रवाइयां दे उत्ते अफसर उत्ते रहन। तो मैं उनकी भी मजम्मत करे सा और DCO साहब से मैं रिक्वेस्ट करे सा कि साडा जो जायज़ मुतालबा है वो फौरन साकू साडा हक दिता वने। जी बिल्कुल, जो है अपने मुतालबात का की फौरी तौर DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना जारी है। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। करेंगे कोटमिठन का, जहां माह रबीउल अव्वल की आमद है। कोटमिठन में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियों का सिलसिला अरूज पर है। सिलसिलों के हवाले से और तैयारियों के हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रोही मोहम्मद अफजल से। जी अफजल, बताइएगा। मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये दुनिया चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही मुल्क पाकिस्तान में आशिकाने रसूल ने जश्न आमद रसूल के सिलसिला में तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पर कोटमिठन में भी जगह जगह खूबसूरत स्टॉल्स सजा दिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार हजरात मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप हमें ये बताइएगा कि ये जो स्टॉल सजाए गए हैं, इस स्टॉल पे आप क्या क्या चीज़ें लोगों को दे रहे हैं और लोग किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ है तो माशाल्लाह अवाम में बहुत जोशो खरोश पाया जा रहा है। यहाँ हमारे पास जो है तकरीबन बैजेस, झंडियाँ, झंडे, बैनर्स वगैरह हर चीज़ दस्तयाब है। और तकरीबन जो है ना झंडों और झंडियों के अंदर जो है ना और बैजेस के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी ली जा रही है। और साल जो है ना बाकी सालों की निस्बत बहुत अच्छा जो है ना जोशो खरोश पाया जा रहा है और बड़ी दिलजोई से जो है ना ख़रीदारी की जा रही है। हाँ जी, जैसा कि दुकानदार रबीउल अव्वल के हवाले से कोटमिठन में भी तैयारियों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद अफजल, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे फोर्ट अब्बास का, जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमान सईद से। जी नुमान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, साजिग यार की महफिल को सजाने वाले, अपने महबूब का मिलाद मनाने वाले, अपनी अश्क से पलकों पे चरागा कर ले कि मेरी बज़ में सरकार आने वाले हैं। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। फोर्ट अब्बास तहसील बाज़ार में भी जो है आका दो जहां की विलादत बासादत को मनाने के लिए यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो अरूज पर पहुँच गई। इसी हवाला से हमारे साथ आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। जी भाई, बताइएगा कि आप जो है इस दफ़ा आपकी तैयारी कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस बाबरकत ज़ात की हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी ज़ात पर, उनकी हाल पर, उनकी औलाद पर। जैसा कि आपको पता है कि आज 5 रबीउल अव्वल है और आज हम बैचेस वगैरह ख़रीदने के लिए आए हैं और अपने इस दफ़ा काफ़ी पुरजोश हैं और बाज़ार, हमारे इलाके के बाज़ार जो है पूरे सज रहे हैं और इंशाल्लाह हम पूरे पुरजोश हैं। हाँ जी बिल्कुल, आशिकाने रसूल फोर्ट अब्बास में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। नुमान सईद, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरों में आपको बताएं कि रहीम यार खान में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन इम्तिहान के लिए मुश्किल बन गया है। जिला भर में इम्तिहानी तलबा 100 किलोमीटर का सफर तय करके इम्तिहान के लिए पहुंचने लगे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जासिम, बताएगा। इमरजेंसी के बाद तालीमी इदारे खुले तो इम्तिहानी सिलसिला भी शुरू हो गया। इंटरमीडिएट का वही रवायती अंदाज इस्तेमाल करते हुए एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स मुकर्रर किए गए हैं और बहावलपुर बोर्ड के ज़रिए एहतमाम ये एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं। मगर इस्लामी यूनिवर्सिटी की जानिब से नया निज़ाम एक मुतारफ़ करा गया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का। BA BSc के एग्ज़ाम ऑनलाइन लिए जाएंगे, मगर इसके लिए सिर्फ पूरे डिवीजन में 3 सेंटर्स बनाए गए। इस्लामी यूनिवर्सिटी, एक रहीम यार खान और भावल नगर कैंपसेस को सिर्फ सेंटर्स बनाए गए। रहीम यार खान जिला 48 लाख आबादी पर मुश्तमिल है और तकरीबन 100 किलोमीटर सेंटर में रहीम यार खान पड़ता है। किसी भी BA BSc के तालिब इल्म ने अगर पेपर देने के लिए आने हैं तो एक ही सेंटर रहीम यार खान सेंटर पर आएगा। कई तलबा ऑनलाइन सिस्टम नहीं जानते, कई तलबा कंप्यूटर चलाना नहीं चाहते और इसके साथ सोने पर सुहागा रोल नंबर स्लिप्स भी ऐसी दी गई हैं तलबा को जिन पर उनकी तस्वीर नहीं है, किसी खातून की तस्वीर लगी दी है, ID कार्ड नंबर नहीं दर्ज, किसी की तस्वीर नहीं आ रही, किसी का नाम गलत है। तो ऐसे सिस्टम के साथ जब ऑनलाइन पेपर देने जाएंगे क्या तलबा का जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा, क्या वो पास कर पाएंगे? आपको कंप्यूटर चलाना आता है? नहीं सर। तो किसी को कंप्यूटर चलाना आता है? किसी ने कंप्यूटर चलाया है? नहीं सर।
नहीं सर। कोई तैयारी की है आप लोगों का, किस तरह ऑनलाइन पेपर देंगे, किस तरह टाइपिंग करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे, कुछ आप लोगों को पता है? नहीं कुछ सर। भी नहीं। तो कैसे आप पेपर देंगे, कोई तैयारी की है? आज जो है ना वो करवाएंगे हमें, प्रैक्टिस वगैरह करवाएंगे। तो आपको पता है प्रैक्टिस में एक दिन में सीख लेंगे? नहीं सर। क्या आप लोगों के साथ क्या मसाइल हो रहे हैं? सर मसाइल ये है कि अक्सर जो स्टूडेंट हैं उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, और सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि हम ट्रेडिशनल लेंगे, हम सब ने ट्रेडिशनल की तैयारी की, मगर अचानक उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन लेंगे। तो आज तक बीएससी एग्ज़ाम के ऑनलाइन पेपर नहीं हुए, और ये चीज़ जो है हमें बहुत ही मुश्किल पड़ेगी कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह दें। तो हम यही चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम को नहीं लिए जाएं। आपने ऑनलाइन एग्जाम के 100 किलोमीटर का सफर है, जबकि कंप्यूटर स्किल्स पर भी ग्रिप नहीं है। तलबा का कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम्स ना लिए जाएं। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका।